मनोहर लाल हरियाणा के विकास के लिए हर दिन नए नए फैसले ले रहे हैं ताकि हरियाणा सफलता के नए आयाम हासिल कर सके। हरियाणा के लोगों की ओर से दुनिया भर के उद्यमियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपनी रणनीतिक नीतियों और राष्ट्रीय राजधानी से निकटता के कारण वैश्विक निवेश को आकर्षित कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में निवेश को लेकर यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी की और अप्रवासी भारतीयों को हरियाणा में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि हरियाणा में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, इसीलिए यहां उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाएं और राज्य में निवेश करें। वैश्विक मंच पर हरियाणा को निवेशकों की पहली पसंद बनाने के लिए मनोहर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 गेटवे टू द फ्यूचर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेशी निवेशकों के साथ बैठक कर राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और प्रवासी भारतीयों को हरियाणा में पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए कहा कि हमारे यहाँ निवेश की अपार संभावनाएं हैं, यहाँ उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाएं और राज्य में निवेश करें। We organized a dinner for our friend of South Africa. All the dignitaries, they attended that dinner. I was introduced over a table of dinner we were having with High Commissioner Uganda, and she was Kukra Mosi, isn't it? Kukra Mosi, and I told her that Mosi in our Haryana, mother's sister is called Mosi. On the day, it was just like a talk that mother's sister is Mosi. And now I am surprised to know that Africa's mother, she is Mama Dr. Sunanda Rajendran. So I met mother and mother's sister, both. On the dais, General Secretary IACCI, Dr. Sunanda Rajendran ji, Shri Pranav Parekh ji, Deepak Sood ji from Asurchem, His Excellency Desire Shom, Ambassador Burkina, His Excellency Gabriel Mangale, Ambassador Botswana, all the friends from South Africa and here in this program, all the friends from media, ladies and gentlemen, I welcome you all on behalf of my government and the people of Haryana. I welcome you all to the land of PPP. That is not just public partnership, public-private partnership, but this is a new definition PPP for Haryana by virtue of its quality. That's a land of karma, is a land of possibilities, land of potentialities, and land of prosperity. Today, the world is at crossroads of transformation. New technology and digital interfaces are creating a world which is opening both the new opportunities and challenges. New processes and new products are opening the ways of economic developments. People and human values are always at the center of development and progress. Therefore, we also need to give impactful thought by mutual engagement. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में है। हमने उद्योगों पर पड़ने वाले कंप्लायंस बर्डन को भी खत्म किया है और हरियाणा में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इसीलिए अप्रवासी भारतीय यहाँ निवेश अवश्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 बनाई है, जिसके तहत निवेशकों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। निवेशकों को यहाँ उद्योग लगाने के लिए सभी प्रकार के अनुमोदन एक ही छत के नीचे प्रदान किए जाते हैं। At Vibrant Gujarat Summit will help us, all of us,
to create a new association, Haryana Africa Ties, for socio-economic development. An important question will be the types and opportunities of employment. As far as we can see, traditional manufacturing will continue to be a major source of employment for our youth. On the other hand, it will be very important for our human resources to bring changes in their lives by enhancing their skills. Therefore, our approach and policies towards education and skill development will have to change rapidly. School and university curriculum have to be designed in such a way that they can prepare our youth for the future. We are the land of experiments, and our Vishwakarma Skill University Haryana, which is in close boundaries of New Delhi, has been launched for this purpose. Its aim is to provide relevant technical and vocational skills to our youth and make them employable. We have to be very careful that the rapid changes coming in the field of technology can at least find a place in the courses at the same pace. In this industrial revolution, talent will be more important than capital. High skill but temporary work will be a new phase of employment. Therefore, we need to focus and invest equally in the development of human capital as in economic development. Proper utilization of new opportunities can, on the one hand, make the job seekers to job creators. My government's emphasis is on ensuring that women, men, youth, and all sections of society have equal access to affordable and quality technical, vocational trainings, agricultural and higher education, and all government schemes. Friends, my government believes in ACT, that is accountability, communication and transparency in the system. Accountable governance system by providing a tool, right to service by auto appeal system. Consistent and continuous dialogue for effective communication by setting a communication protocol, brainstorming to decision making. Transparent system by setting digital systems in existing systems. Deployment of last person in the queue is our motto. The portability of social security benefits will ensure mobility of skilled and employable workers in the digital age. We had created another PPP, that is Parivar Pehchan Patra, that means family ID for all Haryana citizens, to ensure the benefits of the scheme for the society. Technology has become the biggest disruptor in today's time. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा दिल्ली के साथ 3 तरफ से लगता है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हमें पूरा लाभ मिलता है। यहाँ लॉजिस्टिक सुविधाएं लगातार सुदृढ़ की जा रही हैं। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। हरियाणा सरकार हिसार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी स्थापित कर रही है, जिसका उद्योगों को भी बहुत लाभ होगा। इस प्रकार से हरियाणा निवेश के लिए उत्तम गंतव्य है, जहाँ सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क मजबूत है। I with my team here ready to work closely with you on all the themes of multi-dimensional development of people and the state together. In this regard, we may share best practices and policies together. Friends, every single day, Haryana is growing, as mentioned by Dr. Rajendran ji. Our clear vision is to serve the society, political will, new governance, empathy for last person in line, empowerment and partnerships with stakeholders of the socio-economic development will be the key words to drive future success. As we know, there are basically 4 ways of commuting, that is highways, railways, airways and waterways. We have added a ways of commute and bringing the lands closer, that is highways, that is information technology ways, as is spotted in my early phrases. Today we all together are adding new ideas of fast growth through this Africa Focus Seminar at Vibrant Gujarat 2024. Therefore, dear friends, Africa will be at the top of our priorities. We will continue to intensify and deepen our
engagement with Africa. As I have shown, it will be sustained and regular. Our development partnership will be guided by our priorities. We will build as much local capacity and create as much local opportunities as possible. It will be on our terms that will be comfortable for you, that will liberate your potential and not constrain your future. We will keep our markets open and make it easier and more attractive to trade with Haryana. We already have a significant trade and businesses with Africa, and we will support our industry to work in Africa. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है, जिसमें हरियाणा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीएम ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अलग अलग जोन के अनुसार निवेशकों को वित्तीय और अन्य कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। हम बिजनेस टू सिटीजन के साथ साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में विश्वास रखते हैं। इसीलिए निवेशक हरियाणा में आए और निवेश करें। उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर USISPF के अध्यक्ष मुकेश ने मुख्यमंत्री को भारत अमेरिका के 75 वर्षों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित पुस्तक भी भेंट की। बैठक में हरियाणा उद्योग और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव V उमाशंकर, हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक यश गर्ग सहित 20 से अधिक NRI उपस्थित थे। हरियाणा में निवेश करने की अपार संभावनाएं, निवेशकों की पहली पसंद बन रहा हरियाणा। सीएम ने US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के साथ की कॉन्फ्रेंस। NRI को हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा। पीएम मोदी के सपनों का भारत बनाने में हरियाणा निभाएगा सकारात्मक भूमिका। प्रदेश सरकार ने हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 बनाई। रोजगार नीति के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं। निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए अनुमोदन भी प्रदान किए जाते हैं। हरियाणा के लोगों की ओर से दुनिया भर के उद्यमियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपनी रणनीतिक नीतियों और राष्ट्रीय राजधानी से निकटता के कारण वैश्विक निवेश को आकर्षित कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल 2024 में उद्यमियों को हरियाणा में निवेश का विचार करने के लिए आमंत्रित किया और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से एक नए संघ हरियाणा अफ्रीका संबंध की स्थापना का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को संभावनाओं, क्षमताओं और समृद्धि की भूमि बताते हुए उद्यमियों को राज्य में निवेश पर विचार करने का निमंत्रण दिया। मनोहर लाल गुजरात के गांधीनगर में चल रहे 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के दौरान इंडो अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सेमिनार में बोल रहे थे। सेमिनार के दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नए संघ हरियाणा अफ्रीका टाइज की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पारंपरिक विनिर्माण के महत्व पर भी प्रकाश डाला और उभरते हुए रोजगार की मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास नीतियों में तेजी से बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया इस समय नए प्रौद्योगिकियों और डिजिटल इंटरफेस से प्रेरित होकर परिवर्तन के चौराहे पर है। उन्होंने इस परिवर्तन की दोहरी प्रकृति को स्वीकार किया, जिससे अवसर और चुनौतियां दोनों सामने आईं। विकास और प्रगति में लोगों और मानवीय मूल्यों की केंद्रीयता पर जोर देते हुए उन्होंने अफ्रीका और हरियाणा जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं पर दूरगामी प्रभाव पैदा करने के लिए प्रभावशाली पारस्परिक सहभागिता का आह्वान किया। मनोहर लाल ने शिक्षा और कौशल विकास दृष्टिकोण में बदलाव की तात्कालिकता को दोहराया। युवा गतिशील भविष्य के लिए तैयार रहें। हरियाणा अफ्रीका टाइज एसोसिएशन का उद्देश्य आपसी विकास के सहयोगों को बढ़ावा देना और एक मंच तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा संभावना वाला प्रदेश है। स्किल मैन पावर तैयार करने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हमारे युवाओं को प्रासंगिक तकनीकी और व्यवसायिक कौशल प्रदान करना और उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तकनीकी क्षेत्र में जिस तेजी से बदलाव आ रहे हैं, कम से कम उन्हें उसी गति से पाठ्यक्रमों में जगह मिल सके। इस औद्योगिक क्रांति में पूंजी से ज्यादा महत्व उच्च कौशल वाली प्रतिभा का होगा। इसीलिए हमें आर्थिक विकास की तरह मानव पूंजी के विकास पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित करने और निवेश करने की आवश्यकता है। नए अवसरों का उचित उपयोग ही नौकरी चाहने वालों को नौकरी निर्माता भी बना सकता है।
उन्होंने कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान ही वर्तमान सरकार का मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल युग में सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी कुशल और रोजगार योग्य श्रमिकों की गतिशीलता सुनिश्चित करेगी। नागरिकों के लिए योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में PPP ID बनाई है, जिससे आज प्रदेश के लोगों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभ हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यवसाय या आर्थिक पहलों के साथ साथ मानवीय तत्वों पर भी विचार करना है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।